Hello friends, today we will discuss about the structure of atom. In present chapter as a atoms. First of all, we will discuss about the structure of atom. Right now, at present, we know the complete structure of the atom. We can say the proton and neutrons are inside of the nucleus and electrons are revolving around the nucleus in different orbit depending on the energy. That is the final structure of the atom. At present, we have the better knowledge about the structure of atom. But if we think about the initially, means जब ऐसे एटम्स की स्टडी की शुरुआत हुई तब किसी को भी ऐसे स्ट्रक्चर मालूम नहीं था कि व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. एट दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज गिवन बाय द J.J. Thomson. Then first of all we will think about the structure of atom given by J.J. Thomson. We can say Thomson's atomic model. Then, according to the suggestion of J.J. Thomson, he has given that inside of the atom, the positive charge is uniformly distributed over the atom. मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड and electrons are randomly distributed inside of the atom. He has compared his model with the watermelon. In watermelon, if we think about the pulp of the watermelon like positive charge and the seeds of the watermelon as a electron, it means electron is embedded inside of the positive charge. We can say these are the electrons and this one is positive charge, uniformly distributed positive charge, and that's why he has given the another name say as a pulp pudding model. J.J. Thomson ने ये जो उसका मॉडल है वो वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया. That's why it is also called as a plum pudding model. But right now we know that the complete structure और वो यहाँ से पूरा different है. That's why we can say J.J. Thomson was failed to explain the structure of atom. अगर हम इसको सही मान लें कि if positive charge is distributed uniformly all over the atom and electrons are as a randomly distributed, then if we incident the alpha particles. Now think about what are the alpha particles initially. So we can say alpha particles मतलब helium nucleus. It is helium nucleus मतलब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. मतलब ऐसा कोई भी पार्टिकल्स कि जिसमें 2 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूक्लियॉन्स मतलब 2 न्यूट्रॉन्स. तो 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स है ऐसा कोई पार्टिकल जिसको हम बोल सकते हैं हीलियम न्यूक्लियस एंड 2 प्रोटॉन्स ही है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. तो व्हेनेवर this type of positively charged particles are bombarded on the atom, if this structure is true, अगर इसको हम सही मान लें, then what we can say, not a single alpha particle can pass through the atoms, all should be deviated in different path because of repulsion force. ये पॉजिटिव चार्ज इसमें एंटायरली पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में repulsive force लगेगा and that is called Coulombian repulsive force. So due to the Coulombian repulsive force, not a single alpha
we can say Rutherford experiment for the alpha particle scattering. If we consider this one is the atom and whatever the alpha particles are bombarded on it, ये बोलो कि these are the alpha particles and the experimental result shows that most of the alpha particles pass through the atoms. That means otherwise ऐसा बोल सकते हैं कि वो straight pass हुए या फिर थोड़ा ही deviate हुए। यहाँ पर हम almost इसको अगर हम straight मान लें then most of the alpha particles pass through the atom. थोड़े बहुत जो भी अल्फा पार्टिकल्स है वो ऐसे कुछ एंगल पर स्कैटर्ड होते हैं and only few alpha particles rebounds back मतलब अब अगर हम यहाँ पर सोच लें कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो इन स्मॉल रीजन में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे थॉमसन ने बोला कि इट इज एंटायरली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च शोस दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम। दैट्स व्हाई वी कैन से द इनर पोर्शन ऑफ द एटम या मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द एटम इज होलो and the positive charge is concentrated in small region of the atom called nucleus. तो अगर ये अल्फा पार्टिकल अगर हम सोचें कि जो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है देन वो कूलम्बियन रिपल्सिव फोर्स से रिबाउंस होगा। जो भी नियरर है वो कूलम्बियन रिपल्सिव फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करे, जो थोड़े दूर है वो ऐसे थोड़े कम रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करे, तब ये यूनिट ऐसे अलग अलग एंगल पर हमें स्कैटर्ड मिलेंगे। इसके अगर हम नंबर लें कि ये 1 2 3 4 5 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश इट इज 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 days. Then we can say the number 4, 5 and 5 days, 4 days and 5 days. These are without scattering ऐसे पास हो गए या फिर थोड़े डेविएट होकर पास हो गए। Like 2 and 3, तो 2 and 3 में 3 थोड़े ऐसे away है from the nucleus, तो उसका scattering कम हुआ। The 2 and 2 days are nearer to the nucleus, तो उसका scattering ज्यादा होगा। तो जहाँ पर ज्यादा स्कैटरिंग है मतलब ऐसा बोल सकते हैं इट्स नियर टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज एंड अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज दोनों में रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा। देन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट द J.J. Thomson was failed to explain structure of the atom, then successfully structure explained by the Rutherford. According to the suggestion of Rutherford, most of the portion of the atom is hollow. The positive charge is concentrated in small region of the atom called nucleus, where total mass of the atom is concentrated and electrons are revolving around the nucleus in depending on the energy in different orbits. तो ये जो भी है वो रुथरफोर्ड का सजेशन एंड रुथरफोर्ड हैज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जिसमें बोल दिया कि मोस्ट ऑफ पोर्शन होलो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्मॉल रीजन मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही है, और डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट। अब इसी से रिलेटेड एक और साइंटिस्ट, ऐसे दो साइंटिस्ट बोलेंगे, गाइगर एंड मास्टर साइंटिस्ट, उन लोगों ने भी ऐसा रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट
if we see the structure of the मतलब experimental arrangement of the Geiger-Master experiment, तब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसे source of alpha particles, and most probably alpha particles are emitted from the radioactive substance, और जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वैसे तो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है, इसीलिए इसको ऐसे लीड बॉक्स के अंदर पूरा ऐसे कवर करके रखते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम ऐसे लीड रिंग जिसके अंदर ऐसे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर हमें लेना है बिस्मथ, और जिसकी एनर्जी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ से जो भी ऐसे अल्फा पार्टिकल का हमें ऐसे नैनो बीम मिलेगा उसको हमें यहाँ पर कोई भी एक फॉयल जिसको हम बोलेंगे गोल्ड फॉयल, मतलब गोल्ड के एटम के ऊपर हमें इसको इंसिडेंट करना है, तो दिस इज द गोल्ड फॉयल। और जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड होंगे, ऐसे बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स scattered in different direction and only few alpha particles rebounds back। तो ये हमें कैसे पता चले कि यहाँ पर scattered हुए हैं कि नहीं? तब यहाँ पर ऐसे सर्कुलर पाथ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है, तो दिस इज द फोटोग्राफिक प्लेट मेड अप ऑफ जिंक सल्फेट। और यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए, तो जैसे अल्फा पार्टिकल ये फोटोग्राफिक प्लेट मेड अप ऑफ जिंक सल्फेट के ऊपर इंसिडेंट होंगे, वहां पर ऐसे फ्लैशेस मिलेंगे। वी कैन से द प्रोसेस सेंटिलेशन। सेंटिलेशन मतलब थोड़ा स्पार्क जैसा, लेकिन एग्जैक्टली स्पार्क नहीं बोलेंगे, फ्लैश बोलेंगे। यहाँ पर फ्लैशेस होते हैं, और जहाँ पर ऐसे फ्लैशेस हुए, अगर फोटोग्राफिक प्लेट को हम डेवलप करें तो वहाँ पर हमें ऐसे ब्लैक स्पॉट मिलते हैं। तो ब्लैक स्पॉट जहाँ जहाँ पर मिले, वी कैन से अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू दैट। तो मोस्ट ऑफ जो भी हमें स्पॉट मिलते हैं वो इस रीजन में मिलते हैं, और इसके सर्कुलर यहाँ और यहाँ पर थोड़े हमें कम ऐसे मिलेंगे, और एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट में बहुत ही कम मिले। देन वी कैन से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दैट, या फिर थोड़े एंगल पर होंगे। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो यहाँ और यहाँ थोड़े कम मिलेंगे हमें, यहाँ पर मोस्ट ऑफ ऐसे स्पॉट होंगे, इस रीजन में थोड़े कम मिलेंगे। और यहाँ पर अगर हम सोचें तो ये अल्फा पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज और इसके पॉजिटिव चार्ज से वो थोड़े डिस्टेंस पर ऐसे स्टॉप होगा, जिसको बोल सकते हैं R0। तो थोड़े डिस्टेंस पर जाके वो स्टॉप होगा और उसके बाद वापस रिबाउंस हो जाएगा। तो रिबाउंस में हमें बहुत ही कम मिलेगी। तो यहाँ पर याद रखो कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एज बिस्मथ, इस एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो गोल्ड फॉयल है उसकी जो थिकनेस है वो है 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। ये बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल है इसकी। तो ये थोड़ा बहुत, और यहाँ पर ऐसे जिंक सल्फेट की ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट, तो ये जो ऐसे डेटा में याद रखना। अब यहाँ से जो भी ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, अगर उसका हम थोड़ा डिस्कशन करें, तब जो भी यहाँ पर ये जो लाइन होगी अल्फा पार्टिकल की मेन लाइन, मतलब इनिशियल लाइन बोलेंगे, और उससे जो भी अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए उसको बोलते हैं हम स्कैटरिंग एंगल थीटा। देयरफॉर इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, मतलब नंबर ऑफ scattered alpha particles versus scattering angle, अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें कुछ ऐसा नेचर मिलता है। ये सभी जो भी ग्राफ के पहले
इसको हम कनेक्ट करें तो कुछ ऐसा मिलता है। मतलब स्मॉलर एंगल पर नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल ज्यादा है, तो ये जितना स्मॉल होगा उतना यहाँ पर स्पॉट्स ज्यादा मिलेंगे। एज स्कैटरिंग एंगल इंक्रीजेस, दोनों साइड पर नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेस। तब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं कि द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम्स। passes through gold foil। तो इसका सेकंड पॉइंट बोलना है हमें, तब बोल सकते हैं कि जैसे हमने बोला कि एंगल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेस, तब यहां पर बोल सकते हैं कि अगर नियर अबाउट 1 डिग्री एंगल पर हमें सिर्फ 0.14% ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल मिलेंगे। मतलब ओनली 14% ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड अप टू द 1 डिग्री। एंड उसी में अगर हम बोल दें कि जैसे हम बोल दें कि 8000 के हिसाब से ओनली 1, अगर हम 8000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड करें तब हमें जो 1 अल्फा पार्टिकल है वो उसमें हमें ऐसा बोलेंगे 8 रिबाउंड्स पे। तो आफ्टर द 8000 द 1 अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड्स बैक। तो इस जो भी ग्राफ में बोलेंगे कि मोस्ट ऑफ पास हुए, फिर ऐसे 14% अल्फा पार्टिकल्स वो हमें 1 डिग्री पर मिलेंगे। और ऐसे यहां पर भी बोल सकते हैं कि अगर 8000 अल्फा पार्टिकल्स करें उसमें से जो भी ऐसे 1 मिलेगा वो ऐसे रिबाउंड्स बैक। देन ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड्स बैक ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एटम। तो ये जो है वो हमें ऐसे एटम का स्ट्रक्चर मिला हमें। फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री पर भी, क्योंकि इन बिटवीन मिलेंगे हमें। मतलब यहां से ये ग्राफ से सोचोगे थीटा इंक्रीजेस, नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेस। तब यहां पर ये जो भी है यहां से पूरा मालूम पड़ा कि वन मोर टाइम एज ए स्ट्रक्चर ऑफ द एटम गिवन बाय द रुदरफोर्ड कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द एटम इज hollow, positive charge is concentrated in a small portion of the atom called nucleus, and electrons are revolving around the nucleus in different orbits depending on the energy। तो ये जो गाइगर मास्टर एक्सपेरिमेंट है उसमें यहाँ पर हमें अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या है, उसकी एनर्जी कितनी है, अबाउट द थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल, एंड व्हाट अबाउट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये जो इसके नाम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके जो भी ऐसे 2-3 पॉइंट्स है, इसको तो थर्ड पॉइंट भी बोल सकते हो ऐसे, तो 2-3 पॉइंट्स है इसका रिजल्ट वो भी